سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بارے میں بھارتی آبی جارحیت کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ بے سر و سامان متاثرین نیلی چھتری کے نیچے بیٹھے متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ سیلاب کی بے رحم لہریں مزید درجنوں دیہات سے نشان زندگی اپنے ساتھ بہا لے گئے ہیں۔ موسم کی سختی سہتے متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سیلاب متاثرین نے امداد پر پاک فوج اور ریسکیو ٹیموں کو دعائیں دی ہیں۔ ایک نظر ادھر بھی، کئی ہفتوں سے بھارتی آبی جارحیت کے شکار اور امداد کی راہ تکتے سیلاب متاثرین کی زندگی شدید مشکلات سے دوچار۔ سیلاب کی تباہ کاریاں نہ رکی، مزید کئی دیہات میں تباہی مچاتے گزر گیا۔ دریائے ستلج میں بوکا پتن کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے، جس کے باعث 1,66,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے اور سڑکیں پانی میں بہہ گئیں۔ 120 سے زائد آبادیوں کے زمینی راستے ابھی تک منقطع ہیں۔ ادھر احمد پور شرقیہ میں دریائے ستلج کی تیز لہروں سے مزید 2 زمیندار بند ٹوٹ گئے۔ پانی 30 سے زائد دیہات میں داخل ہو گیا۔ سیلاب سے بچ نکلنے والے متاثرین کی زندہ رہنے کی سخت تگودو۔ سامان کی ترسیل کے امتحان کے بعد خوراک کی شدید قلت کا سامنا۔ جانوروں کے لیے بھی چارہ دستیاب نہیں۔ دوسری جانب انتظامیہ ریسکیو 1122 قدرتی آفت کے نتیجے میں متاثرین کی امداد کے لیے شب و روز مصروف عمل ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے پانی میں پھنسے 12,640 مزید افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ کہروڑ پکا میں سیلاب اپنے پیچھے تباہی کی داستان چھوڑ گیا۔ درجنوں بستیاں پانی کی نظر ہو گئی۔ سیلاب متاثرین حکومت کی امداد کے منتظر ہیں۔ رپورٹ کریں گے سمیراؤ۔ پکا کے دریائے ستلج کے سیلابی ریل نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تباہی کی ایک نئی داستان قائم کر دی۔ دریا کے بیچ میں پھنسے لوگوں تک تاحال کوئی امدادی کارروائی نہ کی گئی۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کھانے پینے کا سامان پہنچا رہے ہیں۔ کلے بیٹھے مجبور بیٹھے نہ انہوں کو روٹنے پجے نہ انہوں کو کچھ پجی اسا خود چاہتے پتے اعلان جال جڑے نہ تو بلکہ سارے بیڑے بند کرا دیتے ہیں۔ چلو بات کھڑا دو بس۔ سیلابی ریلا بستیاں کی بستیاں پانی میں بہا کر لے گیا۔ سیلاب میں پھنسے لوگ حکومتی امداد کے بھی منتظر ہیں۔ ایک تو لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں اور دوسری طرف سیلابی ریلا ان کے گھروں کو بہا کر لے گیا۔ انہوں نے عالیہ پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے تاکہ ان کا نقصان پورا کیا جا سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سمیراؤ، کیروڑ۔ بجلی کے ہائی وولٹیج بلوں کے خلاف عوام کا ہائی وولٹیج ری ایکشن۔ خیبر سے کراچی سے بازاروں کی تالہ بندی، شہر شہر شٹر ڈاؤن ہڑتال، کاروباری زندگی معطل ہو کر رہ گیا۔ پوری قوم کی ایک ہی آواز، بجلی بلوں میں ظالمانہ اضافہ واپس لیا جائے۔ جماعت اسلامی کا بھی ملکگیر احتجاج جاری، عوام سڑکوں پر آ گئے۔ بجلی کے مہنگے بلز نے نظام زندگی معطل کیا تو ملک میں معاشی پہیہ بھی جام ہو گیا۔ بھاری بھرکم بلز کے خلاف سراپا احتجاج، تاجروں کی جانب سے آج شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ بازار کے بازار تالہ بندی سے سنسان، گلی گلی شہر شہر دکانوں کو تالے لگ گئے ہیں۔ کاروباری زندگی چلانے والے تاجر سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں اور کشمیر میں بھی عوام اور تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ پہیہ جام ہڑتال کی وجہ سے شہر میں کاروباری مراکز سمیت کئی پرائیویٹ ادارے بھی بند ہیں۔ تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند ہیں۔ مظاہرین کی ارباب اختیار اور بجلی کے محکموں کے خلاف شدید نعرے بازی۔ بجلی کے مہنگے بلز اور بڑھتی مہنگائی اب قابل برداشت نہیں ہے۔ حکومت فوری اشرافیہ کی مفت بجلی ختم کرے، بجلی بلز میں ظالمانہ ٹیکسز کو فوری واپس لیا جائے اور بلز میں عوام کو ریلیف دیا جائے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کی کال پر بھی شہر شہر ریلیاں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ احتجاجی کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ وکلاء بھی عوام اور تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں کے خلاف ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ اس ہڑتال کی کال جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کی طرف سے دی گئی ہے۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی، عوام کا پارہ ہائی، شہر شہر دہائی۔ پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں مہنگائی، بجلی کے بلز میں اضافے اور پیٹرول مہنگا ہونے پر تاجر بھی عوام کے ساتھ ہم آواز۔ مارکیٹس بند، دکانوں کے شٹر گرا دیا گئے۔ کمالیہ، تونسا شریف، ساہیوال میں جماعت اسلامی کی کال پر مہنگائی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ ہڑپا، کمیر، کسوال، چیچا وطنی میں مارکیٹس بند ہیں۔ اوکاڑا میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بجلی کے بلز پر اضافی ٹیکسز پر عدالتی بائیکاٹ کیا گیا۔ دیپال پور اور کوٹ ادو میں شٹر ڈاؤن بازاروں کو تالے لگ گئے ہیں، سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں۔ وزیر آباد میں بھی مہنگائی کے خلاف مزدوروں اور تاجران کی ریلی۔ ہمارا یہ احتجاج بجلی کے قیمتوں میں ظالمانہ اضافے اور ٹیکسز کے خلاف ہے۔
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। सिंध के शहर टंडोबागू, ठल, ठट्ठा, जैकब आबाद, कनकोट, उमरकोट और टंडो अलायार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और भारी बिजली के बिल्स के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। चारसदा में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नौशहरा में जुज़वी हड़ताल, जबकि ट्रेड यूनियन और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी हड़ताल की गई। गरीब आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तरनौल में भी बिजली और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। हाफिज शेर अफजल की रिपोर्ट देखिए। तरनौल में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे तमाम दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत हल्का ने 46 पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा इमरान अशरफ ने की। रैली तरनौल के मुख्तलिफ शहरों से होती हुई तरनौल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत करके मौजूदा हुकूमत को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पीपल्स पार्टी के एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत बिजली के बिलों पर लगाए गए जुल्माना टैक्स, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को फिलफौर वापस ले। ये देखे, ये एक आम आदमी का बिल है, जिसका बिल जो है उसकी तनख्वाह 25,000 रुपया है और इसका 19,000 रुपया बिल आया है। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? शेम शेम। हम इसके ऊपर एहतजाज के लिए निकले हैं और इस सारी अवाम के साथ खड़े हैं हम इंशाअल्लाह ताला। एहतजाजी मुजाहिरीन का मजीद कहना था दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की रोकथाम न की गई तो अपने हुकूक के लिए दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़ तरनौल। लोरेलाई में भी महंगाई और ओवर बिलिंग के खिलाफ शहरियों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी है। बाजारों को ताले लग गए, सड़कें सुनसान हो गई हैं। नेमतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह लोरलाई में भी अमीर जमात इस्लामी सराजुल्लाह के कॉल पर जमात इस्लामी की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे और नारवा टैक्सेस के खिलाफ शहर भर में शटर डाउन हड़ताल किया गया। हड़ताल के बायस लोरलाई शहर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जिली अमीर जमात इस्लामी अब्दुल बारी नासर ने कहा, हमारे हड़ताल का मकसद मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और नारवा टैक्सेस, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। पाकिस्तान की तरह इस वक्त लोरलाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल 100% शटर डाउन हड़ताल है। तमाम दुकानें और मार्केट्स हैं वो बंद हैं। अवाम सरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी की इस कॉल पर अवाम ने जमात इस्लामी का भरपूर साथ दिया है। महंगाई से तंग शहरियों और दुकानदारों ने भी जमात इस्लामी के शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ नेमतुल्लाह नासर, सच टीवी, लोरलाई। उधर सियालकोट में भी बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। ताजर बरादरी ने बिजली की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। दीगर शहरों की तरह सियालकोट में भी बिजली के बिलों में जालमाना टैक्स और इजाफे के खिलाफ ताजर बरादरी ने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की। बेतहाशा टैक्स के खिलाफ ताजरों का कहना है महंगाई के बायस अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए पहले ही परेशानी में मुब्तला है। बाजार कारोबार टोटल बंद है। ये इतनी ज्यादती कर रहे हैं, ये लोग इतनी ज्यादती कर रहे हैं कि इतने बिल का बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जिस बंदे की 25,000 रुपया सैलरी है वो 20,000 या 25,000 बिल कैसे देगा, खाएगा किधर से। अंजुमन ताजरा की दी गई कॉल पर हड़ताल के बायस तमाम मार्केटें, गोहतपुर बाजार, शाहकी बाजार, सियालकोट के मेन बाजार बंद हैं। खुदारा बिजली में जालमाना टैक्स जो गवर्नमेंट में लगाए हैं इसे खत्म किया जाए। गरीब आदमी वैसे ही 2 वक्त की रोटी खाने के लिए बड़ा परेशान है। बिजली के बिलों में लगाए गए इजाफी टैक्स से गरीब दिहाड़ीदार और मजदूर तबके को महंगी बिजली ने बुरी तरह मुतासर कर दिया है। बिजली के बिलों में इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ दी। ताजरों का कहना है निगरान हुकूमत फिलफौर बिलों में इजाफा वापस ले। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। डिग्री में भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजर तंजीमों ने हड़ताल कर दी है। मार्केट और कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की चक्की में पिसे डिग्री के शहरियों का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। आज डिग्री में भी जमात इस्लामी की जानिब से मुलग्गिर हड़ताल की कार पर ताजिर बिरादरी ने भी मुकम्मल हमायत की। डिग्री में दुकानें, कारोबार और तिजारती मराकिज मुकम्मल तौर पर बंद करके शटर डाउन हड़ताल को कामयाब कर दिया। जमात इस्लामी की जानिब से डिग्री के मरकजी मोहम्मदी चौक पर जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जो कल हम चीनी 50 रुपए किलो ले रहे थे वो आज 200 रुपए किलो है। गरीब बंदा जो है वो खुदकशी करने पे मजबूर है, लेकिन यहाँ के हमारे हुक्मरान जो हैं वो दिन ब दिन रेट बढ़ा रहे हैं। बढ़ा चढ़ा के अगर यहाँ पे 10 रुपए तेल चढ़ता है तो 200 रुपए जो है वो किराया वसूल किया जा रहा है। यहाँ से डिग्री से टंडो जाने में तकरीबन 10 किलोमीटर है। आज कायदे मोहतरम जनाब सराजुल्लाह की कॉल के ऊपर जमात इस्लामी डिग्री के कारकुनों ने लब्बे कहते हुए डिग्री के शहरियों से अपील की थी और डिग्री शहर की आवाम ने हमारे साथ भरपूर तावन किया है। डिग्री शहर मुकम्मल तौर पर बंद है और इंशाअल्लाह आज रैली भी होगी
और हुकूमत की ये जो कारकर्दगी है, ये PDM का टोला जो हम पर महंगाई मसलत करके गया है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए निगरान गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, हम बुनियादी तौर पर इसको PDM का टोला, ये जो 11 रुकनी इत्तेहाद था, ये जो हम पर महंगाई मसलत करके गया है, हम उसकी निंदा करते हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि जालमाना महंगाई को कम करके आवाम पर रहम करें ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली राजपूत, सच न्यूज़, डिगरी। शब कदर में भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक कर दी है। सैयद नादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। अशियाई खुर्दनोश, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफा और नाजायज़ टैक्सों की भरमार के खिलाफ तहसील शब कदर बाजार में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई और ख़त्म नबूवत चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। एहतजाजी मुजाहिरे से जमात इस्लामी तहसील शब कदर के अमीर हाफिज शफीउल्लाह अहमद ज़िल्ली रहनुमा मलिक सजाद अहमद, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सैयद जाकिर शाह बादशाह, ट्रांसपोर्ट यूनियन के अहदेदार मलिक कलंदर खान, मलिक रुहुल अमीन और दीगर ने कहा कि बर्दाश्त से बाहर महंगाई, लाकानूनियत, बेरोजगारी, बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफा, नाजायज़ टैक्सों की भरमार, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर मसाइल के बायस गरीब आवाम की जिंदगी अजाब बन गई है। मुकर्रीन ने कहा कि बिजली बिलों में इजाफा, टैक्सों की भरमार ने गरीब आवाम को खुदकशियों पर मजबूर कर दिया है। आए रोज महंगाई के ऐलानात के बायस हुकूमत ने गरीबों से नवाला भी छीन लिया है। मुकर्रीन ने कहा कि हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों के बायस आज मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। शाहराहों की बंदिश के बायस शदीद गर्मी में ट्रांसपोर्टरों और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरा टीम के साथ सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़, शब कदर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जहां बिजली के भारी बिलों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज और मुकम्मल शट डाउन है, वहीं तहसील तांदियावाला के कस्बा कलियांवाला के ताजरों और शहरियों ने इसका मुकम्मल बाइकआउट किया है। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जहां बिजली के भारी बिलों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज और मुकम्मल शटर डाउन है, वहीं तहसील तांदलेवाला के कस्बा किलियांवाला के ताजरों और शहरियों ने इसका मुकम्मल बाइकाट किया है। एक जानब महंगाई का शोर तो कहीं एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल जारी है, मगर तांदलेवाला के कस्बा किलियांवाला के ताजरों ने अपने कारोबार बंद करने से इनकार कर दिया। शटर डाउन हड़ताल की मुखालफत करते हुए कारोबारी मराकज खुले और शहरियों और मुसाफिरों की रौनक से महंगाई का तूफान भूल गए। मगर जो महंगाई से कारोबार पहले ही तबाही का शिकार हैं, अब मजीद अपने कारोबार को मुकम्मल बंद करने से फाके सफेद पोश तबका की दहलीज तक पहुँच जाएंगे। हड़ताल करते हैं शामी खाना चाहिए किसान मन चाहिए कि महंगाई कम करे। पहले बड़े परेशान महंगाई की वजह तो लोगों के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि अगर एक दिन अगर कोई मजदूरी नहीं करता तो उन्हें 1000-1500 तो बर्डन पै जाता है। तो मजदूर के हालात इस तरीके से कि अगर वो एक दिन उन्हें मजदूरी ना लपे तो दूसरे दिन बेचारा वो फाका के चीज़ मजबूर हो जाता, दूसरी बार उधार ही कोई नहीं देता जी। शहरियों का कहना था कि रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, जबकि महंगाई और भारी बिजली के बिलों का बोझ कारोबारी तबका के साथ आम तबका की खुशहाली के रास्ते का पहाड़ बन चुका है, जिस पे शहरियों और मुख्तलिफ हलकों ने निगरां हुकूमत से अवामुन्नास के लिए फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। मुल्क में दिन ब दिन महंगाई की शरह में इजाफे के बायस टंडू बागों में रक्षा और रेहड़ीबानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुहेल हराई की रिपोर्ट देखिए। दिन ब दिन पेट्रोल, बिजली और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली अशिया में बढ़ती हुई कीमतों के बायस जहाँ हर आम व ख़ास तबका परेशान है, वहीं रक्षा और दिन भर रेहड़ी चलाने वाला तबका एक वक्त की रोटी के हसूल के लिए भी कासिर है, जिसके बायस गरीब तबके के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਚਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ थोड़ा बहुता साढ़े नाल तावन किया जाए। पेट्रोल महंगो थी है, गरीब आवाम ॾाढी परेशान थी वही। असीं जेको गाॾा हलाइण वारा से परेशान आहियूं, हर शइ अटो ई खाइण लाइ कोन्हे। जेको माण्हू आहे एॾी परेशानी थी वई है, केॾां वञे गरीब माण्हू, ॿुधाए छा करे वञे। ने निगरां हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा किया है ताकि गरीब तबका अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना पेट भर खिला सके। कैमरा टीम के हमरा सुहेल हराई, सच न्यूज़, टोबागो। बिजली की कीमतों के बाद अब निगरान हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, जिस पर कसुवाल के शहरी परेशान हैं। राय मुस्तफ़ा खरल की रिपोर्ट देखिए।
महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर बिजली की कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत बदल गई लेकिन गरीब आदमी की परेशानी कम न हुई। निगरान हुकूमत ने भी रखी साबका हुकूमत की रिवायत बरकरार। रात के अंधेरे में महंगाई में पिसी बेबस गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। शहरी कहते हैं हम पुर उम्मीद थे कि निगरान हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करेगी। निगरान हुकूमत ने बहुत सारी उम्मीदें कि आने वाले वक्त गरीब आवाम को रिलीफ देनी है, लेकिन इन्होंने आंदे ही पेट्रोल की कीमत में 2 दफा इजाफा करता, जिस वजह तो गरीब आवाम इंतहाई परेशानी का शिकार है। तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई का तूफान बरपा होगा जो आम आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा होने की वजह से कसवाल के शहरी परेशान हैं। शहरियों ने कीमतों को कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफा खरल, सच न्यूज कसवाल। काड़ा के आवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से परेशान है। पहले बिजली की कीमत बढ़ाकर अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे हबीबुल्लाह चराही। काड़ा की आवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। गरीब और मतवस्त तबका के जिस्म से आखिरी खून का कतरा भी हुकूमत निचोड़ना चाहती है। पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना गोया के हर चीज की कीमत को बढ़ाना है। बिजली की वजह तो आवाम सड़कों से आई हुई है। गरीब आदमी की तनख्वाह 2000, 20,000, 25,000 तनख्वाह है तो उनका 40,000 बिल है। बाकी कसर पेट्रोल से कटती हुई है। गरीब आदमी की करे, बच्चे पाले, मकान का किराया दे, की करेगा गरीब आदमी। लोगों का कहना है कि 20,000 रुपए महाना कमाने वाला एक मजदूर जो किराए के मकान में रहता है वो किराया अदा करेगा, बच्चों को रोटी खिलाएगा, तो बिजली और पेट्रोल के लिए रकम कहां से लाएगा। मुल्क पाकिस्तान में गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं, ना हुकूमत का कोई वजीर और ना ही कोई अदारा गरीब की आवाज को सुनने वाला है। लोगों का कहना है कि बिजली के इतने बिल हैं कि वो तो हम लोग अदा नहीं कर सके, ऊपर से पेट्रोल का बम गिराना ये समझ से बालातर है। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्लाह चुराही, नुमाइंदा सच न्यूज़, उकाड़ा। बोंगा खयात में पेट्रोल 3 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें सुनकर शहरियों की चीखें निकल गई हैं। राव मुबारक अली रिपोर्ट करेंगे। साबका हुकूमत की रवश को बरकरार रखते हुए निगरान हुकूमत ने भी 15 रोज़ में मुसलसल दूसरी दफ़ा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिल तरतीब 14 रुपये 91 पैसे और 18 रुपये 44 पैसे इजाफा करके बिजली की कीमतों में इजाफा से स्थायी अवाम पर एक बार फिर से महंगाई का बम गिरा दिया, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 3 सेंचुरियाँ क्रॉस करने के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं और एशियाई खुर्दनोश की कीमतें भी आम आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। महंगाई की इस बढ़ती हुई कीमतों में इस वक्त आवाम जो परेशान है, अब इस वक्त इस हाल में है कि अपने बच्चों का पेट पाले या कि ख्याल करे। महंगाई का जो बम गिराया गया है ये पेट्रोलियम मसनूआत पर, इसके साथ साथ बिजली के बिलों पर जो बम गिराया जा रहा है, इस वक्त आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जैसा कि आवाम का कहना है कि हर हफ्ते नए से नए महंगाई के आफ्टर शॉक्स की स्थायी आवाम जाए तो किधर जाए। अभी तो निगरान वजीर आजम की तरफ से बिजली के बिलों में कोई रिलीफ नहीं मिला, ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की शक्ल में फिर से महंगाई बम गिरा दिया गया है। 700-800 रुपए की मजदूरी करने वाले मेहनत कश को अपने बच्चों के पेट पालने की खातिर एक वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। हुकूमत अवाम पर रहम खाए और इजाफी कीमतों को फिलफौर वापस ले ताकि आम आवाम को कुछ रिलीफ मिले और गरीब आवाम कुछ सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ राव मुबारक अली, सच न्यूज़, बुंगा हयात। पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। ओट शरीफ में पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से पहले ही बुरा हाल था, रही सही कसर पेट्रोल ने निकाल दिया। हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम की रिपोर्ट देखिए। और शरीफ में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से हर शहरी परेशानी में मुब्तला है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 3 सेंचुरी से भी क्रॉस हो गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा से ट्रांसपोर्ट के किराए में भी हद तक इजाफा हो गया, जिनके असरात एशिया खुर्दनोश की कीमतों में शामिल होने पर मजीद महंगाई का आवाम को सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल के हालात हैं, लोग मरते होते, पहले महंगाई घट है, टुकर नहीं मिलता, आटा महंगा, बिजली महंगी, हर शे महंगी। मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म है, मेहरबानी करते आवाम दे हाल दे तरस खाओ, सारे हाल दे रहम करो, ये महंगाई को घट करो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 3 सेंचुरी से भी क्रॉस होने पर आवाम में तशवीश की लहर दौड़ाई। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी लाई जाए। कैमरामैन सिकंदर रजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साची न्यूज़, शरीफ।
हरिपुर में पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। शहरियों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में अब जिंदगी बसर करना मुमकिन नहीं रहा। आए रोज हर चीज की बढ़ती हुई कीमतों ने परेशान करके रखा है। बच्चों का पेट पाले या हुकूमत को टैक्सेस दें। रिपोर्ट करेंगे नईमुल्ला खान। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तान की अवाम इंतहाई मुश्किलात में, घर का बजट कंट्रोल करने से बाहर हो गया। हुकूमत को चाहिए इस बारे में कुछ नजरसानी करें अवाम के हाल पर। आज बुनियादी तौर पे इसलिए यहाँ पर सारे लोग जमा हो रहे हैं कि हुकूमत ने लोगों से जीने का हक भी छीन लिया है। पेट्रोल में देखें आज कितना ज्यादा इजाफा कर दिया गया। आटा मिलने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल मौजूद नहीं है, जिंदगी की जरूरियात जो है वो नापैद हो गई हैं। हैसियत वकील भी और हैसियत पाकिस्तान का एक शहरी होने के नाते जो कुछ भी ये महंगाई में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की मद में देखें, बिजली की मद में देखें, बाकी खुर्दनोश की अशिया में देखें, ये अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें आम आदमी की दस्तरस से दूर हो गईं। लोगों का कहना है कि रोज बरोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। कैमरामैन जैद के साथ नईमुल्ला खान, सच टीवी, हरिपुर। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को रिलीफ ना मिल सका। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। मुल्क भर की तरह सिनामा में भी महंगाई के तूफान ने मजदूर और दिहाड़ीदार तबके का जीना दो भर कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हो या बिजली के बिल, दिहाड़ीदार तबका रक्षा चलाने वाला हो या सब्जी या फ्रूट रेडी बांध शदीद कर्ब में मुब्तला है। दिहाड़ीदार तबके का कहना है बच्चों का पेट पालें या उनको पढ़ाएं या पेट्रोल और बिजली के अखराजात पूरे करें। महंगाई की तरफ वो सब परेशान है। मजदूर हैं, 500 रुपए दिहाड़ गिनते हैं। आए रोज बिजली महंगी, आए रोज पेट्रोल महंगा। पेट्रोल 313 रुपए का हो गया है। अब मैं क्या करूं? ये बिल भरूं या रोजी कमाऊं? 5 मेरे बच्चे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? मजदूर तबके का यही कहना है अब हालात तो ये हैं कि बच्चों की फरमाइश पर उनको कोई चीज खिला भी नहीं सकते। हुक्मरान बेहस हो गए हैं, गरीब के बारे में सोच भी नहीं रहे। मजदूर तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजदूर के बारे में सोचा जाए ताकि वो सुख की जिंदगी गुजार सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत के बाद चीनी की कीमतों में भी इजाफा। लाहौर में होलसेल में चीनी की फ़ी किलो कीमत 8 रुपये बढ़ गई। फ़ी किलो चीनी 180 रुपये से 185 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आपको बताएंगे कि किराना मर्चेंट एसोसिएशन के मुताबिक 50 किलो चीनी का बैग 8,400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। थोक और परचून सतह पर चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। मार्केट ज़राए के मुताबिक चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। केन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि पंजाब में 10 लाख मेट्रिक टन चीनी का स्टॉक मौजूद है। क्रशिंग सीजन तक चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। शुगर डीलर्स का कहना था कि शुगर मिल्स के पास स्टॉक है तो सप्लाई लाइन को बेहतर बनाया जाए। शुगर मिल्स के पास फरोख्त शुदा स्टॉक मार्केट में पहुंचाया जाए। शुगर डीलर्स का कहना था कि तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए इंतजामिया मौसर निज़ाम वज़ा करे। चित्राल के नवाही इलाके बेस्ती के शहरी अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। रिपोर्ट करेंगे गुलहमाद फारूकी। चित्राल का इलाका बेसी अगर एक तरफ कुदरती हुस्न की वजह से नहायत खूबसूरत है तो दूसरी जानब इन पहाड़ों में कुदरत का बेशबहा कीमती पत्थरों का खजाना भी मौजूद है। मगर अरबों रुपए की जमरुद की पत्थर इस पहाड़ से निकालने के बावजूद यहाँ के लोग अब भी नहायत गरीब है। बेस्ती के लोगों ने गैर मुकामी लीज होल्डर की नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाजी जलसा करते हुए सड़क पर धरना देकर उसे ब्लॉक किया। इलाके के माहिदीन ने कहा कि माजी में यहाँ आईबेक्स, मारखोर, तितर, कौमी परिंदा चकोर और दीगर जंगली हयात मौजूद थे और गैर मुल्की शिकारियों की हंटिंग ट्रैफिक के तहत शिकार करने से उनको करोड़ों रुपए की आमदनी होती थी। मगर जब से इन पहाड़ों में ब्लास्टिंग शुरू हुई है तो जंगली हयात भी यहाँ से गायब हो चुकी है और उनको शिकार की मद में जो मुआवजा मिलता था वो भी खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि लीज होल्डर निहायत गैर तकनीकी तरीके से ये जमरत निकालते हैं जिसमें ज्यादातर कीमती पत्थर जमीन में दबकर जाया हो जाता है। 4 साल हो गया, अभी जितने रोड हैं 67 किलोमीटर, कोई कम फासला नहीं है। तो 67 किलोमीटर में जितने आवाम यहाँ मौजूद है ये ख़ुद अपनी मदद आप के थ्रू ये रोड वगैरह बनाते हैं, लेकिन इनके जो
पिछले 2 सालों से तकरीबन 15 से 16 बुलडोज़र आते हैं। इलाके के लोगों ने मुतालबा किया कि उनको लीज होल्डर के गुंडागर्दी से निजात दिलाया जाए, वरना हक न मिलने की सूरत में वो रात कदम उठाने पर मजबूर हो गए। वज़ीर करे कि हसीन इलाका बेस्ती के लोग इस बात पर मजबूर हो गए कि उनको अपना हक नहीं मिलता। यहाँ से अरब रुपए का ज़मरुद निकाले जाते हैं मगर उनको रॉयल्टी और सर्विस चार्ज नहीं जाता। इन लोगों का ये मुतालबा है कि हमें अपना हक दिया जाए, वरना हम अपने एहतजाज जारी रखेंगे। अहमदारुकी, सच न्यूज़, वादी बेस्ती, चतराल। पाकपतन के शहरियों का देरीना मसला हल हो गया। साबिक MNA सैयद साजिद मेहदी ने नए पोल मंजूर करा के 5 दिनों में बिजली बहाल करा दी है। रिपोर्ट करेंगी नज़ीर अहमद खरल। सैलाबी इलाकों से महफूज इलाकों में जाने वाले सैलाब ज़दगान को सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ बिजली ही नहीं थी। चंद पोल सैलाबी पानी के ज़ाद में आ गए, जिसकी वजह से मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हो गए, जिनमें बानमोड़, थिराजकोट, 38 के भी, उमेंदा लकोका, माझी जमलेरा, चाबक्खू वाला शामिल थे। सच न्यूज़ ने निशानदेही की तो मकामी समाजी रहनुमा मलिक रियाज जमलेरा और अहले इलाका भी मैदान में आ गए। साबिक MNA सैयद साजिद मेहदी ने नए पोल मंजूर करा के 5 दिनों में बिजली बहाल करा दी। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ जानवर पानी हर शय तो बेचारे तरसते पे। बिजली बहाल होने से अहले इलाका समेत सैलाब मुतासरीन में भी खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पानी नहीं था पीने के लिए और जानवरों को पिलाने के लिए। गर्मी, मच्छर समेत बहुत से मसाइल का सामना था। अहले इलाका ने वापडा वालों की काविश को भी सराहा। काका मक्की की कोशिशें और खुसूसी काविश वापडा वालों की, आखिरकार इनकी बिजली तो बहाल हुई, सैलाब मुतासरीन के मसाइल भी हल हुए। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकपतन। कोट छुट्टा में दी वर्ल्ड फेडरेशन और अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शामरदान के ताउन से रोजगार प्रोजेक्ट का आगाज हो गया, जिसके तहत नौजवानों में ऑटो रिक्शे और नकदी रकूम तकसीम की गई। अली रजा हमदानी की रिपोर्ट देखिए। कुदरती आफात, आंधी, तूफान, जल्जला, सैलाब हो या फिर वबाई अमराज फूट पड़ें, खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार दी वर्ल्ड फेडरेशन और अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शामरदान हमेशा पेश पेश। गुज़िश्ता रोज़ मदरसा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में दी वर्ल्ड फेडरेशन और अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शामरदान के ताउन से रोजगार प्रोजेक्ट के तहत 9 लोडर रिक्शे और 30 अफराद में इमदादी रकूम तकसीम की गई। अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शामरदान के सरपरस्त आला मुमताज़ आलम दीन अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की ज़ेर सरपरस्ती खिदमत खल्क का काम बिला तफरीक तेज़ी से जारी है। रोजगार प्रोजेक्ट के तहत मुस्तहकीन में ऑटो रिक्शे और नकदी रकूम की तकसीम के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शामरदान के सदर सैयद इंतसार मेहदी नकवी ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सैयद इंतसार मेहदी नकवी का कहना था कि दी वर्ल्ड फेडरेशन और अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शामरदान ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए हमेशा कलीदी किरदार अदा किया, जबकि रोजगार प्रोजेक्ट के तहत जिन अफराद में इमदादी रकूम और लोडर रिक्शे तकसीम किए गए, उनका कहना था कि रोजगार प्रोजेक्ट्स के तहत मिलने वाली इमदादी रकूम और लोडर रिक्शे किसी नेमत से कम नहीं। तकरीब में मौलाना किफ़ायत हुसैन जहदी, मौलाना मूसा रजा, सैयद सदाकत जहदी, सैयद बाकिर अली शाह व दीगर भी शरीक हुए। अली रजा हमदानी, सच TV, कोट छुट्टा। सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।